Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. थैंक यू जीसस लॉर्ड मेरी आवाज़ की क्वालिटी किमें हैगी मैंने दोस्तों आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी किमें हैगी थैंक यू जीसस लॉर्ड थैंक यू जीसस 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 लॉर्ड थैंक यू जीसस लॉर्ड थैंक यू जीसस लॉर्ड मेरी आवाज़ की क्वालिटी किमें हैगी थैंक यू जीसस लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस लॉर्ड Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. वीडियो की क्वालिटी किमें हैगी है Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मेरी आवाज़ की क्वालिटी किमें और वीडियो की क्वालिटी किमें हैगी मैंने सोचा जल्दी Thank you, Jesus, Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देना करो सब जन आज दिन ਦੇ ਲਈ और इस समय ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ 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 Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord Jesus. सब जन परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, Lord. परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਂਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस परमेश्वर की कह रहा हैगा ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਭ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर की आराधना करो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो आज इस समय के लिए Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दियो इस सोशल मीडिया के लिए इस माध्यम के लिए कि भावें ही ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है इस सोशल मीडिया के लिए इस माध्यम के लिए कि ਅਸੀਂ कनैक्ट हो सकते एक दूसरे से थैंक यू जीसस धन्यवाद परमेश्वर सब जन परमेश्वर धन्यवाद देना शुरू करो अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੋ महसूस करो कि ਅਸੀਂ सब जन जो लाइव हैगे हैं देख पा रहे हैं महसूस करो कि ਅਸੀਂ इकट्ठे हैगे एक जो जगह के उपर ਅਸੀਂ मौजूद हैगे हैं इस तरह महसूस करो कि ਅਸੀਂ चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ हैगे सब जन महसूस करना शुरू करो इसी तरीके
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲॉर्ड। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਭ ਜਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। सब जन परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। अपनी बाइबल, अपनी डायरी, अपने पेन ਨੂੰ अपने ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। सब जन सब जन सब जन सब जन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, 77, 78 ਔਰ 79 ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਾਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੋ ਕਨਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਿਆ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अन्य ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜੋ। ਇਸ ਠੰਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਆ जल्दी ना दसो कि हाँ मेरी बाइबल मेरे को हैगी है। जितने लोगों के पास बाइबल है अपने बताएं कि मेरे पास बाइबल है, मैं रेडी हूँ अपनी बाइबल के साथ। ਜਿਹੜੇ हिंदी वाले भी हैगे जल्दी देना। परमेश्वर का जो वचन दसने के लिए जा रहा है, परमेश्वर ने मैंने बोलिया है और एक दिन मैं प्रार्थना करके लेटा उसे मैं बोलता पाया सी, परमेश्वर इस मौजूदा समय ਦੇ और आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। और परमेश्वर ने उदों मैंने दसिया कि बहुत सारे मसीह लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ उन्होंने अपने हिसाब से अपने रस्ते का चुनाव कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी कमिटमेंट में छड़ दिता है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कमिटमेंट की थी परमेश्वर ਨਾਲ कि परमेश्वर इस तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, उन्होंने कमिटमेंट छड़ दी हैगी और वो कहते कि किसी नॉर्मल मसीहां ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੌਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਨॉर्मल ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, पर परमेश्वर रेडी है तुहाडे नाल गलबात करने लई। मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा, तुसीं सोचदे होवोगे कि असीं परमेश्वर दा चुनाव कीता, असीं परमेश्वर नूं कबूल कीता हैगा। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा तुसीं परमेश्वर नूं नहीं चुनिया, तुसीं परमेश्वर दा चुनाव नहीं कीता, परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया है। परमेश्वर ने तुहाडा चुनाव कीता है, परमेश्वर ने तुहाडा नाम लैके तुहानूं सद्दिया हैगा और तुसीं उहदी उपस्थिति दे विचों दौड़ नहीं सकदे। परमेश्वर दी पवित्र बुलाहट दे विचों तुसीं दौड़ नहीं सकदे। परमेश्वर दौड़न नहीं देगा, इसलिए परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करने लई अपने वचन दे विचों इस जगह के उपर है। और अज तुसीं सुनोगे कि हाँ परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। हालेलुया। किन्ने कोल बाइबल हैगी? अपनी बाइबल दे नाल किन्ने जने रेडी है? थैंक यू जीसस लॉर्ड, वेरी गुड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? मैंने फाइनली दस दो। लास्ट वाली मैं पूछन लग्या कि तुहाडों आवाज़ की क्वालिटी सही हैगी तो तुसीं आवाज़ सुन पा रहे हो वधिया तरीके दे नाल? थैंक यू जीसस लॉर्ड। किन्ने जने मेरी आवाज़ नूं क्लीयर सुन पा रहे हैगे? वेरी गुड। मेरी आवाज़ नूं तुसीं सुन पा रहे हो? मैं लास्ट टाइम पुछ लग्या कि मैनूं प्लीज़ दसो एक बारी, ताकि परमेश्वर का वचन मैं तुहानूं दसां परमेश्वर की कह रहा है अपने वचन दे विचों। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओके वेरी गुड। जिन्हों को बाइबल हैगी अपनी बाइबल खोलो, रूथ की किताब, रूथ द बुक ऑफ रूथ, न्याइयां तो बाद वाली किताब हैगी रूथ। सब जने कड्डणगे सिर्फ 6 आयतां मैं तुहाडे सामने पढ़नी हैगी और ध्यान देना, तुसीं सुनना हैगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ध्यान देना सुनो, मैं परमेश्वर के वचन तुहाडे सामने पढ़ने लई जा रहा। रूथ उहदा पहला अध्याय, उहदी पहली आयत दे विच अपना पेन नाल रखना हैगा। तो पेन तुहाडे कोल होना चाहिए है। ध्यान देना, वचन सुनना है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। यह अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वह मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वह वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली
सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर का वचन दसदा है, जो तुम ध्यान देना पढ़ते हो, कि एक जगह का जिक्र है बैतलहम का। और जो तुम पहली पढ़ते उत्थे लिखा कि ये उन्होंने दिनों की गल है जो न्यायी लोग राज करते थे। मैं हमेशा गल करता, जो परमेश्वर का वचन तुम पढ़ते हो, वो वचन के जी एक बिंदी भी लगी हुई है, कोई भी साइन लग्या हो गया, ध्यान देना तुम उन्होंने देखना है, ताकि उस मौजूदा समय की जो घटना किस एक्सप्रैशन के ये जो वचन लिखा गया कि हाव भाव है उस समय परमेश्वर का, वो सानू पता लगता है। हालेलुया। जो तुम बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन लिखा जिस तरह अज इस कोविड-19 के माहौल के अकाल वाली स्थिति बनी हैगी। कईयों के कोल खाण के लिए खाना नहीं है, कईयों के कोल पैसा नहीं है, कई परमेश्वर के वो लोग आ जिन्हों के जीवन के पैसे की ब्लैसिंग भी हैगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने खुद के गुजारे के लिए पैसा भी उन्होंने को है, खाना भी है, लेकिन कितना किते वो मसीह लोग जिहड़े प्रभु की हजूरी दे विचों दौड़न की तैयारी करते पे है, मैं देखे गए ने, उन्होंने जीवन के कितना किते अकाल पिया है, उन्होंने जीवन भी अकाल पिया, लेकिन वो अकाल रोटी का नहीं सीगा, पैसे का नहीं सीगा, वो जिहड़ा अकाल सीगा वो कितना किते चमत्कार का, चंगाई का या छुटकारे का सीगा। उन्होंने इस समय दे विच ना तो चंगाई वेखी, ना छुटकारा, ना कोई ब्लैसिंग वेखी। इसलिए जिस तरह बाइबल च लिखा, ये बंदा बैतलहम दे विचों चला गया क्योंकि उत्थे खाण पीण की सुविधा नहीं सी, उत्थे अकाल पै गया सीगा। उसी तरह बहुत सारे मसीह लोग प्रभु की हजूरी दे विचों दौड़न की योजना बना रहे हैं, और बहुत सारे मसीह लोग दौड़ चुके हैं। हालेलुया। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, प्रभु अपनी हजूरी दे विचों तुसीं दौड़ जाओ, तुहानूं ये अलाउ नहीं करता पै इस मौजूदा समय दे विच। हुण ध्यान देना सुनो की लिखा होया है, कहता जिन दिनों में न्यायी लोग राज्य करते थे, कहता उन्होंने दिनों की गल है जो न्यायी लोग राज करते थे। जो तुसीं रूत तो पहला एक किताब पढ़ते हो, उत्थे न्यायियां की किताब हैगी, ये उन्होंने दिनों की गल आ। और जो न्यायियां की किताब तुसीं पढ़ते हो, 18वां अध्याय न्यायियां की किताब, ਉਹਦਾ 18वां अध्याय कटो सारे ने की लिखा है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। न्यायियां ਉਹਦਾ 18वां अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि न्यायियां ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪਿਆ। न्यायियां ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? जजिस, एक किताब का नाम है जजिस, उत्थे लिखा 18वां अध्याय न्यायियां की किताब 18वां अध्याय पहली अच लिखा है, कहता उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, और उन्हीं दिनों में दानी, ठीक है जी, इतों पढ़ने का, उन दिनों में इजराइलियों को कोई राजा नहीं था। न्यायियां के दिनों कहते इजराइल का कोई राजा नहीं सीगा, ठीक है जी। फिर 19वां अध्याय उसकी पहली अच की लिखा, उन दिनों में जब इजराइली को कोई राजा ना था। हालेलुया। जिक्र आउंदा कि न्यायियां के दिनों के कोई भी इजराइल के उपर राजा नहीं सीगा। फिर न्यायियां की किताब उसका 21वां अध्याय उसकी आखिरी च लिखा कि न्यायियां के दिन किहो जे सीगे, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है कि उन्होंने दिनों के जो ये जिक्र किया गया कि न्यायियां के दिनों की गल हैगी, कहते उस दिन इजराइलियों के उपर कोई भी राजा नहीं सी, उन्हों का कोई लीडर नहीं सी, उन्होंने कोई भी अगवाई करने वाला उस जगह के उपर मौजूद नहीं सी। जिहदा जो मन करता सीगा वो आपके हिसाब नाल करते सी। जे किसी को लगता मैं गलत करना है, कोई रोकने वाला नहीं सी, वो गलत करते सी। जे किसी को लगता सी मैं सही करना है, वो सही करते सी। कोई इनकरेज करने वाला भी उन्होंने दिनों के नहीं सीगा। ਇਹਦਾ मतलब जिन्हों जो ठीक लगता सी उन्होंने दिनों के करते थे। हालेलुया। अज बहुत सारे लोग है, कुछ लोगों के जीवन में लीडरशिप नहीं हैगी, तां प्रभु के दौड़न का उन्होंने फैसला कर लिया है कि असीं हार्डवर्क नहीं करना। और बहुत सारे लोग अजिहे आ जिन्हों के जीवन में लीडरशिप भी हैगी, अगवाई भी हैगी, प्रभु के वालों एक लीडर भी उन्होंने दिता गया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जो लीडर उन्होंने लीडर लीड करता पाया परमेश्वर के वचन के वो मानते नहीं पे, सुनते नहीं पे। इस करके बहुत सारे मसीह लोग इस लॉकडाउन के माहौल में जो चर्च नहीं लग रहे, प्रभु की उपस्थिति के निकल चुके हैं। बहुत सारे लोगों को लगता कि सानू हार्डवर्क करने की लोड़ नहीं हैगी, ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा प्रार्थना, ज़्यादा फास्टिंग, ज़्यादा बीज के, ज़्यादा ऑफरिंग दे के हुण तक सानू कोई रिजल्ट नहीं मिला। पवित्रता के चल के, होलीनेस के चल के सानू कोई रिजल्ट नहीं मिला। हुण असीं नॉर्मल मसीहां दे वांगू चलना है। बाइबल के लिखा है कि यह बंदे का नाम एलीमेलेक आ, और यदा सुभाव भी इहो जिहा ही आ। ये भी कहता पाया है
अकाल पै गया और इन्हूं लगता कि मैनू आपका एरिया छड्ड के चला जाना चाहिए, इहो जगह के उपर जिथे अकाल नहीं गा मैं उत्थे चलदा, वो ज़्यादा वधिया हैगा। अज बहुत सारे मसीह लोगों का माइंड सैटअप इहो जिहा हो चुकिया, उन्होंने लगता है कि सानू प्रभु दे विच बने रहना चाहिए, मसीह असीं रवांगे पर असीं सही तरीके दे नाल जिवें पहिलां चलदे सी, कुछ गलत नहीं करना, कुछ गलत नहीं बोलना हैगा, ज़्यादा जिवें ऑफरिंग दिंदे सी पहलां या ज़्यादा प्रार्थना करते सी उवें नहीं करना, नॉर्मल मसीहियां दे वांगू चलो। कई मसीही लोग जिहड़े इस तरह फैसला लै चुके हैं। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा परमेश्वर दे विच इह वो सीजन हैगा है, रोंदे हुए बीजोगे अपनी प्रार्थनावां नूं, अपने टाइम नूं, अपने सीड नूं, बिना रिजल्ट तो नहीं रहोगे तुसीं। हालेलुया। अज मैं इस जगह पर तुहानूं इनकरेज करन दे लई आ, परमेश्वर की आवाज़ तुहाडे तक पहुँचाउण दे लई आ। कल नूं अजिहा ना होवे किते परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए, जिहड़े तुहाडे नाल पिछे वो अगे लंघ जाण ते तुसीं जदों अगे सीगे तुसीं पिछे हो जाओ सारे नाल। हालेलुया। सारे नाल वध पेनफुल ये टाइम होएगा तुहाडे लई जदों तुसीं देखोगे कि जिहड़े पिछे सी वो अगे निकल चुके हैं ते मैं पहले नंबर ते हुंदा सी, मैं अगे सी, मैं पिछे रह गया है। फिर तुसीं ये नहीं कह पाओगे कि मैनू इंडीकेशन नहीं दिता गया, मैनू नोटिस नहीं दिता गया, परमेश्वर ने मेरे नाल गलबात नहीं की। मैं तुहानूं दसदा मैं परमेश्वर अज तुहाडे नाल गलबात करदा पैगा। बाइबल लिखिया जिस तरह अज का माहौल आ, ये बाइबल दे विच लिखिया कि इस तरह का समा सी, उदों भी इहो जिहा माहौल बनया सी, अकाल पिया और उन्होंने दिनों हरेक बंदा आपदे हिसाब नाल करदा पिया सी, आपदी सोच के हिसाब नाल चलदा सी। अज भी बहुत सारे लोग अपनी सोच के हिसाब नाल चलते पे आ। कहते उन्होंने दिनों की गल है जदों न्यायी लोग राज करते सी, जिन्होंने जो ठीक लगता सीगा वो आपदे हिसाब नाल करते सी। हुण बाइबल च लिखिया कहते उन्होंने दिनों दे विच अकाल पिया हैगा, अकाल पिया हैगा, घाट पै गई है खाने पीने की। और ये अकाल जो पिया हैगा, एक बंदा बैतलहम दे विच रहिंदा, इसदा मतलब बैतलहम दे विच भी अकाल पिया हैगा। और बैतलहम का मतलब आ हाउस ऑफ ब्रैड, खाने का घर। हालेलुया। बैतलहम दे विच रह रहे, मतलब हाउस ऑफ ब्रैड। हाउस ऑफ ब्रैड का मतलब भी इत्थे रोटी की कमी नहीं होगी, रोटी का भंडारा, रोटी का घर हैगा। हालेलुया। तो सोचो वो बंदा एलीमेलक उहदा नाम आ। जदों तुसीं एलीमेलक के नाम का मतलब पढ़ते हो, पुराने नियम के जिहड़े नाम हुंदे सी और नवे नियम के जिहड़े नाम हुंदे सी, हरेक नाम का कोई ना कोई मतलब सीगा। कोई भी नाम अजिहा नहीं हुंदा सीगा जिहदा मतलब ना होवे। हरेक गल का मतलब हुंदा सी, हरेक नाम का मतलब हुंदा सी। अगर बैतलहम नाम रखा गया, भी मतलब आ रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रैड। एलीमेलक के बंदे का नाम आ, इसका भी कोई मतलब आ। एलीमेलक का मतलब आ परमेश्वर यहोवा मेरा राजा, परमेश्वर मेरा राजा। एलीमेलक के नाम का मतलब आएगा परमेश्वर मेरा राजा, लॉर्ड इज माई किंग। हालेलुया। हुण सोचो ये बंदा जो बैतलहम दे विच रह रहा, वो बैतलहम जिन्होंने कहता कि रोटी का भंडार, रोटी का घर, इनू ये नहीं पता कि मैं किहड़ी जगह ते रह रहा हैगा। हाउस ऑफ ब्रैड, रोटी का घर, इनू मतलब नहीं पता जिहड़ी जगह ते रह रहा। और अगर इनू मतलब पता हुंदा तो कभी भी इस जगह छड्ड के ना जाता। एक गल समझण वाली आ, जदों असीं अकाल नूं देखदे ते अकाल पिया, तो एक गल समझनी पैनी हैगी आ। बाइबल दे विच किते भी जदों तुसीं अकाल का मतलब सुनते हो, अकाल पै गया किसी जगह के उपर, प्रॉब्लम आ गई आ, तो किते भी जिहड़ा फैमिन हैगा, अकाल हैगा, वो परमानेंट नहीं हुंदा सीगा। हालेलुया। ये बंदा जिहदे नाम का मतलब आ कि परमेश्वर मेरा राजा है, इनू ये नहीं पता कि अकाल आया तो हैगा है पर ये परमानेंट नहीं हैगा, ये टैंपरेरी आ। ये आया है और ये चला भी जाऊगा। अज बहुत सारे मसीह लोग हैगे, उन्होंने लगता कि असीं सही तरीके नाल परमेश्वर विच चले सीगे, रिजल्ट सानूं नहीं मिलिया, हुण असीं प्रभु दे विच उस तरीके नाल नहीं चलना हैगा। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हैगा, अगर एक चमत्कार तुसीं नहीं देखिया, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि परमेश्वर के सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ कोई गड़बड़ी हैगी आ। ਇਹ पॉसिबल हैगा है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि मैं फास्टिंग करता सी, मैं ऑफरिंग दिंदा सी, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता सी, रिजल्ट मैं नहीं देखा। ये हो सकता है कि साडे विच कमी होवे, लेकिन परमेश्वर के सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी कोई गड़बड़ी या कमी नहीं हुंदी। हालेलुया। इस बंदे ने यह नहीं सोचा है कि जिहड़ी जगह ते मैं रह रहा, इसदा मतलब आ रोटी का घर, रोटी का भंडार या रोटी का घर। और मेरे नाम का मतलब की आ परमेश्वर मेरा राजा। हालेलुया। पर प्रॉब्लम पता की हैगी है, ये न्याइयां दे दिनां दी गल हैगी आ, जदों उन्होंने कोई सिखाउण वाला कोई नहीं हैगा। अगर वो अपनी जगह नूं छड्ड के जा रहे, उन्होंने रोकण वाला कोई नहीं हैगा कि तुसीं इस जगह नूं छड्ड के ना जाओ। अज जिहड़े मसीह लोग इस वीडियो में देखणगे और जिहड़ी योजना बना रहे कि नॉर्मल प्रार्थना करिया करांगे, कोई गल नहीं, ठीक आ सारा कुछ,
ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋ। ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਵੋ, ਅੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਕੋ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਐਲੀਮੇਲਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ और अपने हिसाब से जल्दी जल्दी फैसला लिया है। और बाइबल में लिखा वह अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेसी होकर रहने को चला। बाइबल में लिखा वो मुआब नाम के देश के चला गया, अपनी पत्नी को लिया, दो दे बेटियां नाल लिया तो निकल गया मिनटों मिनट। उन्हें वेट नहीं की अगर अकाल पिया कि ਜਿਹੜੇ मेरे नाल दे भाई भैन हैगे आ, ਜਿਹੜੇ नाल दे प्रभु के लोग हैगे आ बैतलहम ਵਿੱਚ रह रहे, वो की सोचते आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੂ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜੋ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਆਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਮੇਲਕ ਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲੀਮੇਲਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਐਲੀਮੇਲਕ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਮੀ ਹੈਗਾ, ਨੌਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਡਿਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਆਨੰਦਿਤ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਸੁਬਾਹ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8-10 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਦੀ, ਪਰ 10-12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ 10 ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ 2 ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੌੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक बेटे का नाम की है, उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। हालेलुया। एक का नाम महलोन, एक का नाम किलियोन है। इन्हों के जीवन च जी ब्लैसिंग हैगी, जिस जगह के उपर रह रहे हैं, जो अकाल पिया है, इन्होंने ये नहीं वेख्या कि ये टैंपरेरी है। अपनी ब्लैसिंग इन्होंने समझा नहीं, अपने नावां के मतलब नूं इन्होंने समझा नहीं। लीडरशिप नहीं हैगी। बहुत सारे लोगों ने सही तरीके अपने आप को मैनेज किया होया, पर इन्होंने अपने आप को मैनेज नहीं किया। बाइबल लिखा इन्होंने 2 बेटे होए आ, ते 2 बेटे के नाम की रखे, एक का नाम महलोन है, एक का नाम किलियोन है। महलोन एलीमेलक का आपके नाम का बड़ा सोहना मतलब है कि परमेश्वर मेरा राजा। नौमी के नाम का मतलब आनंदित, माई डिलाइट। नौमी के नाम का बड़ा सोहना मतलब आ, एलीमेलक के नाम का बड़ा सोहना मतलब आ, पर जिस माहौल के पले ने, लापरवाही वाले माहौल के, इन्होंने अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलाया, अपने आप को मैनेज नहीं किया। इन्होंने 2 बेटे होए, एक का नाम महलोन रखा। महलोन का मतलब की है? सिकनेस, बीमारी। हालेलुया। और किलियोन का मतलब की है? किसी बीमारी के कारण सुकते हुए, सुकता जाना, कि कोई बीमारी किसी के हो तो सुकता जा रहा है, वह मतलब होंगे किलियोन। हालेलुया। हुण सोचो,
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋਣਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦੂਗਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਮਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਮਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਡੇਲੀ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਮੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਐਲੀਮੇਲਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਕਰ। ਸੋਚੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਓਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਈਥ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਟਾਈਥਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸੋਚੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟੀ, ਰੋਇਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਲੀਮੇਲਕ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇੱਧਰ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ
ਅੱਜ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੌੜਨ। ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਖਰਸ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, एलीमेलेक मर गया ਹੈਗਾ। और चौथे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? और उन्होंने ਜਿਹੜੇ बेटे ਸੀਗੇ उन्होंने एक एक मुआबिनी स्त्री से विवाह कर लिया और एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूत था और फिर वह वहाँ कोई 10 वर्ष रहे, तब महलोन और क्लियोन दोनों मर गए। हालेलुया। प्रभु का वचन दसदा है पहला एलीमेलेक की मौत हुई हैगी आ, फिर दोनों बेटियां की मौत हो गई है। और इत्थे एक जबरदस्त गल पता की हैगी है, एलीमेलेक की भी उम्र इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी, वो ज़्यादा बजुर्ग नहीं हैगा, लेकिन वो मर गया है। दो बेटे आ, उन्होंने विआह किया उत्थे, उन्हों की उम्र कोई ज़्यादा नहीं हैगी, वो भी मर गए हैगे। हालेलुया। एक गल याद रखो, जदों जदों असी प्रभु की उपस्थिति दे विचों बाहर जाते हैं, असी सुरक्षा के घेरे दे विचों बाहर निकल जाते हैं। और देखो 6वीं अध्याय में की लिखा है, तब वह मुआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपने लोगों प्रजा के लोगों की सुधि लेके उनको भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी बहुओं समेत लौट जाने को चली। नौमी ने सुनिया, उन्होंने गुड न्यूज़ मिली हैगी कि परमेश्वर ने अकाल खत्म कर दिता है, अपने लोगों को परमेश्वर ने रोटी दी हैगी है। बाइबल लिखा वापस जाने के लिए रेडी होया, पर जो उन्होंने वापसी तैयारी की है, सब कुछ ही खत्म हो चुका है उन्होंने जीवन में। बाइबल लिखा एलीमेलेक मर गया है, दोनों बेटे भी मर गए, ना तो नौमी की मौत हुई, ना जिहड़ियां दोनों उन्दियां दियां नौवां सी उन्हां दी डेथ हुई हैगी। हालेलुया। और बाइबल लिखा सब कुछ खत्म हो गया है। और देखो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, ये हो सकता है साडे जीवन दे विच कई बार असीं समस्यावां देखीए, प्रॉब्लम्स देखीए, हो सकता कई बार असी प्रार्थनावां का रिजल्ट भी ना देखिए, हो सकता असी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते पई हुई किसी चीज़ के लिए और उहदे विच रिजल्ट ना देखिए, पर इसदा मतलब ये नहीं कि असी प्रभु की उपस्थिति विचों बाहर निकल जाना। हाँ, कई बार असी निराश हो सकते हैं, कई बार असी कह सकते कि परमेश्वर मैं अज तो बाद प्रार्थना नहीं करनी। हाँ, ये चीज़ां हो सकती, कई बार असी गुस्से भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा लंबे समय प्रभु तो दूर रहना साडे जीवन दे विच घाटा लैके आउण दा कारण बन सकता है। बाइबल के स्पैशल लिखा है एलीमेलेक मर गया है और वो घट्टो घट 10 साल मुआब दे विच बने रहे। वो जगह जिथे परमेश्वर ने सख्त हदायत दी सी कि इत्थे जाना नहीं हैगा, बाइबल च लिखा 10 साल उस जगह के उपर रहे जिथे परमेश्वर ने मना किया सी। परमेश्वर के घर के विचों बाहर निकले आ, ये गलती की उन्होंने। मुआब दे विच चले गया जिथे परमेश्वर ने मना किया, ये गलती की है। परमेश्वर ने कहा सी उत्थों के बेटे, उन्होंने लड़के लड़कियां आपके बेटे बेटियां के लिए नहीं ब्याहने, उन्होंने वो भी गलती की हैगी। और 10 साल उत्थे बने रहे हैं और मौत उन्होंने जीवन के आ गई है, वड्डा घाटा उन्होंने देखा है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, अज तुहाडे जीवन हो सकता तुसीं कुछ लॉस देखे हो, कुछ घाटे देखे हो, पर वड्डी ब्लैसिंग तुहाडी वेट करती पई आ अगर तुसीं परमेश्वर दे विच ठहरन वाले हो। और अगर नहीं ठहरन वाले हो तो मैं तुहानूं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वड्डा घाटा भी तुहाडी वेट करता पिया, जिहड़ा घाटा हजे तुसीं देखिया नहीं हैगा। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया हैगा दोनों बेटे भी मर गए और पिता भी मर गया है जवानी के दिनों के। उस तरीके दे नाल किते अज जो उद्धार परमेश्वर ने तुहानूं दिता है, किते तुसीं अपनी सोच अपनी समझ दे नाल गवा ना दिओ, इस करके परमेश्वर तुहाडे नाल करदा पिया है। हुण देखो जदों प्रभु की हजूरी ये बाहर निकलिया गया, पहले नंबर पर यह काहदे लई बाहर निकलिया? रोटी नहीं हैगी जी, अपने हिसाब नाल अपने रास्तिਆਂ ਨੂੰ इन्होंने अपने हिसाब नाल अपने रास्ते का चुनाव किया है, रोटी नहीं हैगी खाने के लिए। पर बाइबल दसदी आ नौमी ਉਹਦਾ पति भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए है। सोचो एक छोटी जी गल रोटी के कारण उस जगह तो निकलिया गया और वड्डा घाटा देखा।
जो तुसी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 47ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 47 ਉਹਦੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ। 47 ਦੀ 9 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? यशाया 47वां अध्याय की 9वीं आयत सुन ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। बिगेस्ट कर्स जो बाइबल में दसे गए सारे नालों वड्डे शराप जिहड़े हैगे वो दो हैगे आ, जवानी के दिनों च पति का मर जाना और बच्चों की मौत हो जाना। ये बहुत दो वड्डे शराप आ बाइबल दे विच, और ये दोनों वड्डे घाटे दोनों वड्डे शराप जिहड़े नौमी के जीवन दे विच आए। सोचो हुण इत्थों अगर सानूं पुछया जाए भी किहड़ियां गल्लां ज़्यादा वधिया, अकाल ज़्यादा वधिया हैगा है कि पति और बच्चों का मर जाना ये ज़्यादा वधिया हैगा? ज़्यादा औखा की आ? मैं तुहाडे तो पुछना चाहुंदा ज़्यादा औखा काम की हैगा? अकाल नूं फेस करना या बच्चों का मर जाना और पति का मर जाना? सारिआं नालों वड्डी घाटे वाली गल किहड़ी हैगी? फस्ट गल अकाल और सैकेंड गल पति का मर जाना या बच्चे का मर जाना। किहड़ी घाटे वाली गल ज़्यादा वड्डी हैगी? सिर्फ तुसी एक या दो नंबर टाइप करना। मैं देखना चाहुंदा है जो परमेश्वर के वचन तुसी सुनते पे, मैं थोड़ा व्यू देखना चाहुंदा कि परमेश्वर के वचन तुसी सुन पा रहे हो कि नहीं, समझते पे हो कि नहीं। सारा नालों वड्डा घाटा की है? नंबर 1 और नंबर 2, फर्स्ट और सैकेंड। अकाल ज़्यादा घाटे वाली गल लगती है या बच्चों का मर जाना और पति का मर जाना ये घाटे वाली गल ज़्यादा हैगी है? वेरी गुड, पहला आंसर आ गया। सैकेंड गल ज़्यादा घाटे वाली हैगी। सोचो निक्की जी गल करके गए आ पर उदू वड्डा नुकसान इन्होंने करा लिया। अज अगर तुसी परमेश्वर के वचन सुनते पे हो और परमेश्वर का वचन जिन्होंने तुसी दसना है उन्होंने दसो जाके तुसी घाटा खादा होगा, हो सकता थोड़ी प्रार्थना ना सुनी गई हो, लेकिन ये छोटी गल आ। लेकिन अगर तुसी प्रभु की उपस्थिति विचों बाहर निकलोगे वड्डा लॉस तुहाडी वेट करता पिया हैगा। हालेलुया, थैंक यू जी, वेरी गुड। सैकेंड मैंने जवाब मिलना शुरू हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद है कि तुसी सुन पा रहे हो। हुण 6वीं आयत पढ़ो, ध्यान देना की लिखेगा। रूत पहला अध्याय 6वीं आयत की लिखेगा? वेरी गुड। 6वीं आयत की लिखेगा? तब हुण ध्यान देना सुनो, 6वीं आयत बड़ी जबरदस्त हैगी। 6वीं आयत किते ना किते जो एलीमेलेक ने जल्दबाजी की है, लापरवाही की है, तो जो मैं सदा कहां मूर्खता ही की है, गलत फैसला जो लिया है, 6वीं आयत उन्होंने रिवील कर दी पई है। किवें? तब वह मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हालेलुया। परमेश्वर का वचन था नौमी ने की सुनिया? एक न्यूज़ सुनी, और इंग्लिश लिखा न्यूज़ नहीं सी, कल गुड न्यूज़ सी कि परमेश्वर ने आपके लोगों को की दी है, रोटी दी है। 10 साल वो अकाल पिया रहा, 10 साल बाद वो सुनने की रोटी दी परमेश्वर ने आपके लोगों को। 10 साल बाद गुड न्यूज़ पहुंचेगी। नौमी एलीमेलेक इन्हां दी फैमिली 10 साल उस जगह के उपर रही जिथे परमेश्वर ने मना किया रोटी के मारे, और 10 साल बाद इन्होंने सुनिया है, नौमी ने सुनिया कि परमेश्वर ने अपने लोगों को की दी है। इन्हें सुनिया, इतने स्पैशल लिखा है अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। इसका मतलब 10 साल जो एलीमेलेक के परिवार ने एक अजिही जगह से कड्डे जिथे परमेश्वर ने जान तो मना किया। इसका मतलब अगर ये फैमिली प्रभु की उपस्थिति के बाहर निकली हैगी, इसका मतलब बहुत सारे लोग अजिहे भी सीगे जिन्हों ने बैतलहम को छड्डिया नहीं है। अकाल पै गया, पर उन्होंने कहा कि अकाल तो पै गया है पर यह परमानेंट नहीं है, टैंपरेरी है, असी प्रभु की हजूरी में छड्डना नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब जो 6वीं आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ पढ़िए, ਇਹਦਾ मतलब ਉੱਥੇ कोई लोग हैगे ਸੀਗੇ, और अगर ध्यान देना पढ़िए तो मतलब कुछ लोग नहीं, उत्थे सारे लोग ही उत्थे सीगे। अकाल पिया लेकिन कोई बंदा उस जगह ਨੂੰ ਛੱਡ के नहीं गया, सिर्फ एक परिवार छड्ड के गया ਸੀ, सिर्फ एक फैमिली एलीमेलेक की फैमिली सीगी जिहड़ी प्रभु की हजूरी ਨੂੰ परमेश्वर के घर ਨੂੰ ਛੱਡ के गई सी। एक सिंगल बंदा उस जगह के तो अपने घर ਨੂੰ ਛੱਡ के नहीं गया ਸੀ। ਹੁਣ सोचो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ कि मैं एक नवी जगह पर जाऊँगा, उत्थे रोटी की घाट नहीं होगी,
किसी चीज़ की घाट नहीं होगी इस काल में, उत्थे जाऊँगा। एक बंदा फैसला लेंदा और वड्डा घाटा वेखदा हैगा, और 10 साल उत्थों के सारे लोग बैतलहम दे विच ही रहिंदे, कहंदे जो मर्जी हो जाए असीं जाना ही नहीं। और बाइबल च नहीं लिखा उत्थे एक भी मौत हुई है, कोई बंदा उत्थे नहीं मरिया। हालांकि उत्थे अकाल पिया पर वो मरे न, उत्थे कोई नहीं मरिया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के घर दे विच बने रहे। वो समझते सी कि ये बैतलहम जिहदा मतलब कि हाउस ऑफ ब्रैड, हाउस ऑफ ब्रैड का मतलब है इतने कदे सानू घाट नहीं होगी भावें अकाल पिया है। और वो विश्वास करके उत्थे ठहरे रहे। तो बाइबल में लिखा उत्थे एक बंदा भी घाटे दे विच नहीं रहा, एक बंदे ने भी लॉस नहीं देखा है। पर जिहड़ा बंदा ज़्यादा सियाणा बनता पाया, जिहड़ा आपदे हिसाब दे नाल फैसले लैंदा पाया, सारा वड्डा घाटा उन्हें चलिया, खुद ही मौत हो गई, दोनों बेटे भी उन्हें मरवा दिते गए। हालेलुया। उस तरीके नाल अज मैं परमेश्वर के वचन दे विच तुहानूं उत्साहित करदा पाया, अपनी जगह नूं छड्ड के दौड़ो ना। एलीमेलेक नूं लग्या अकाल पै गया है, वड्डा घाटा पै गया है, और उन्हें फैसला ले लिया दौड़न का, पर वड्डा नुकसान उन्हें झल्लिया है। बाकी जिहड़े लोग हैगे आ, बाकी जिहड़े उस जगह के उपर रह रहे हैं बैतलहम दे विच, उन्होंने उस जगह को छड्डिया नहीं, वो नहीं किते भी गए। वो कहते इत्थे रहना, मरीए भावें असीं जीए, असीं इत्थे ही रहना है। और बाइबल लिखा 10 साल अकाल पिया रहा, लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं होया, फिर भी परमेश्वर उन्होंने लिए खाना प्रोवाइड करता रहा। हुण सोचो 6वीं आयत में लिखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को रोटी दी है 10 साल बाद चो। तो सोचो 10 साल फिर किवें गुजारा होया होना उन्होंने, 10 साल वो किवें जिउए होने आ, की खादा होगा उन्होंने, की पीता होना उन्होंने कि 10 साल वो बचे रहे, कोई मौत नहीं हुई उत्थे। और 6वीं आयत लिखा कि 10 साल बाद जो बीत चुके, उस बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन तो रोटी दी है, भोजन वस्तु दी है। इसका मतलब 10 साल पहलों की करते रहे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, प्रभु की हजूरी के बने रहोगे, घाटा तुसीं नहीं देखोगे। दिन इहो ਜਿਹੇ हो सकते हैं, हालात इहो ਜਿਹੇ हो सकते, तुहानूं रवाउण वाले, तुहानूं अकाउण वाले, तुहानूं थकाउण वाले, पर यह सब कुछ टैंपरेरी आ, ये परमानेंट नहीं है। बाइबल दसदी परमेश्वर का वचन परमानेंट हैगा। वो कल अज तो युगान युग इक्को जिहा रहण वाला परमेश्वर आ, वो ना बदलण वाला परमेश्वर आ। कुछ समस्यावां आउणगियां, लेकिन ये परमानेंट साडे जीवन च नहीं ठहरनगियां। अज बहुत सारे लोग थोड़ा जिहा जीवन दे विच कुछ देखते हैं, गड़बड़ी देखते हैं और भज जाते हैं, उन्होंने लगता परमानेंट काम हो गया है। इस तरीके अपने रास्ते का चुनाव ना करो। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, परमेश्वर यही कह रहा कि अपने हिसाब नाल अपने रास्ते का चुनाव ना करो। सोचो एलीमेलेक, चलो मैं तुहाडे तो एक सवाल पुछदा हैगा, जिहड़ी किताब पढ़ते पे हैं, ये किताब का नाम की है? मैनूं दसो, जिहड़ी किताब नूं असीं पढ़ रहे हैं, नाम की है? की नाम है इस किताब का? टाइप करो, की नाम है इस किताब का, जिहड़ी किताब असीं पढ़ते पे हैं। अज जिहड़े जिहड़े लोग परमेश्वर का वचन सुन के फैसला लैणगे कि असीं जीए चाहे मरीए, असीं प्रभु दे विच ही रहना है। अज का वचन सुनने तो बाद असीं उन्हां लोकां नूं प्रभु दे विच दौड़न नहीं देना, जिहड़े दौड़न दी योजना बनाउंदे पे आ। परमेश्वर के वचन दे नाल उन्हां नूं कवर करना है, रोकना है, समझाउणा है। परमेश्वर उन्हां नूं आदर देगा। मैं तुहानूं गारंटी दे दिंदा हैगा, परमेश्वर तुहाडा आदर करेगा, परमेश्वर तुहानूं ऑनर देगा। ओके, पहला जवाब आ गया रूथ। किहड़ी किताब पढ़ते पे सी? मैनूं दसो जल्दी टाइप करके, फिर मैं तुहानूं कुछ खास और जबरदस्त दसना चाहुंदा हैगा। किहड़ी किताब असीं पढ़ते पे हैगे? पहला आंसर आ चुका है रूथ। आमीन, हालेलुया, लाइक टाइप, ये कुछ नहीं बनता। मैं जो पूछता पे मैंने दसो जल्दी ना, फिर मैं तुहानूं एक जबरदस्त गल दसना चाहुंदा हैगा। किहड़ी किताब के उत्ते असीं परमेश्वर के वचन सीखते पे हैगे? की नाम है इस किताब का? रूथ। रूथ, वेरी गुड। थोड़ा जवाब बिल्कुल सही है। असीं रूथ एक किताब नूं पढ़ते पे हैं। किताब का नाम रूथ हैगा। कदे सोचा हैगा रूथ कौन सी? रूथ कौन सी? अगर ध्यान देना पढ़िए, रूथ यहूदनी सी, वो इजराइली कौम दे विचों नहीं सी। बाइबल च लिखा वो एक अजिही जाति दे विचों आई आ, जिहड़ी जाति दे नाल परमेश्वर ने मिलन वरतन तो भी मनाही कीती सी। इजराइली कहा तुसीं इन्हां लोकां दे नाल मिलना नहीं हैगा, इन्हां दे बेटे बेटियां नहीं विआहणे हैगे। अजिही जाति दे विचों रूथ आई हैगी आ। सोचो, परमेश्वर कहंदा इन्हां लोकां नाल तुसीं मिलना ही नहीं है, मुआबियां नाल। ते रूथ कौन हैगी आ? मुआबन हैगी आ, मुआब दी रहण वाली हैगी आ। हालेलुया, वेरी गुड। रूथ वो मुआबी जाति दी, जिहदे नाल परमेश्वर कहंदा तुसीं मिलना ही नहीं, वरतना ही नहीं, इन्हां नाल कोई लिंक ही नहीं रखना हैगा तुसीं। सोचो कि ये जिहड़ी किताब पढ़ते पे, इहदा नाम रूथ के नाम के उपर क्यों हैगा? हालेलुया, रूथ के नाम के उपर क्यों? कदे सोचेगा सी?
इत्थे जबरदस्त गल पता की है, इजराइली लोग जिहड़े परमेश्वर के लोग है, एलीमेलक वो परमेश्वर ਉਹਦੇ वचन की सामर्थ ਨੂੰ समझदा नहीं पिया, वो हदायतां जो दे रहा उन्होंने नहीं समझ रहा हैगा, परमेश्वर के घर की वैल्यू नहीं समझ रहा कि बैतलहम का मतलब हाउस ऑफ ब्रेड है। उन्हें परमेश्वर को आदर नहीं दिता। बाइबल दसदी है अगर असी परमेश्वर को आदर दिंदे हां, परमेश्वर सानू आदर दिंदा हैगा। और रूथ ने की कीता हैगा, बाइबल च लिखिया रूथ ने की कीता हैगा, रूथ ने एक बड़ा जबरदस्त काम कीता हैगा। एलीमेलक नूं लग्या अकाल पै गया हैगा और मैं चले जाना बैतलहम नूं छड्ड के, और वो चला गया और बड़ा लॉस में देखा। रूथ ने की फैसला लिया, रूथ दा पति जवानी दे दिनां दे विच ही मर गया हैगा। ओपरा दो नौमी दी नौवां हैगियां, दो बहुआं हैगियां, वो कहंदी चल असीं भी तेरे नाल चलदियां हैगियां तेरे देश दे विच, और नौमी उन्हां नूं समझाउंदी आ, कहंदी वापस जाओ, तुसीं जवान हैगियां हो, तुसीं खूबसूरत हो, तुसीं जाके दोबारा शादी कर सकदे हो। मेरा तो पति भी है नहीं गा कि मेरे को एक उम्मीद हो मैं दोबारा बेटा जम्मूंगी, तुसीं मेरे उस बेटे नाल दोबारा शादी कर लो। कहंदी कोई उम्मीद ही है नहीं गी। अगर तुसीं रूथ दा पहला अध्याय पढ़ोगे तो जानोगे, 4 अध्याय पढ़ो जे ध्यान दे नाल, ये मौजूदा समय दे लई परमेश्वर की आवाज़ हैगी आपदे लोकां दे लई। बाइबल च लिखिया ओहदी एक बहू जिहदा नाम ओपरा सी, वो वापस चली गई, रोंदी हुई वापस चली गई। रूथ ने एक फैसला ले लिया, कहंदी मैं आपदी सस नूं छड्डना नहीं हैगा। हुण सोचो जवानी दे दिनां दे विच पति मर जावे और वो लड़की खूबसूरत होवे, जवान होवे, और वो फैसला ले लवे मैं मैरिज नहीं करनी, मैं अपनी सस की सेवा करनी है, और वो बहुत खूबसूरत भी है, वो नौजवान आ, वो बिल्कुल जवान आ, बिल्कुल यंग हैगी आ। सोचो दा फैसला कितना जबरदस्त हो। वो कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरे नाल तेरे देश दे विच चलूंगी। और बाइबल दे विच लिखा परमेश्वर ने रूथ नूं उच्चा कीता है, और रूथ के नाम के उपर एक किताब अज इसी करके असीं पढ़ते पे हाँ। सोचो जिहड़े परमेश्वर के लोगों को फैसला लेना चाहिए कि प्रभु दे विच असीं खड़े रहीए, वो खड़े नहीं, तो जिहड़े लोगों को परमेश्वर ने रद्द किया सीगा, उन्होंने एक अजिहा फैसला लिया कि असीं परमेश्वर के घर दे विच जाना है, तो परमेश्वर को असीं फॉलो करना है। परमेश्वर ने उन्होंने आदर दिता, परमेश्वर ने रूथ नूं आदर दिता है। सोचो जवानी के दिनों जो पति मर जाए, और एक लड़की का जवानी दिनों हसबैंड मर जाए, और जदों उन्हें टेस्ट किया हो लाइफ नूं, एक कहते ना मैरिड लाइफ में उन्हें टेस्ट किया हो, और फिर भी अपने आप को सोचे मैं पवित्रता ये बना के रखूँगी, ये फैसला ले लेना कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी सस की सेवा करूँगी। कितनी जबरदस्त गल हैगी। बाइबल च लिखिया वो जो खेतों च काम करन जांदी सी, वो किसी दे वल वेखदी भी नहीं सी रूथ। और बाइबल च लिखा रूथ बहुत ही ज़्यादा सोहनी सी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी। सोचो वो सस घरे आ, वो खेत दे विच काम करदे पे, कुछ भी गलत कर सकती, किसी दे वल भी देख सकती है। लेकिन जो तुसीं बाइबल पढ़ोगे उत्थे लिखिया है जदों प्रभु के घर दे विच आई, बैतलहम दे विच रहण दे लई आई, उन्हें कंप्लीटली अपने आप को अपनी सस के अधीन किया है। एक लीडरशिप दे विच उन्हें अपने आप को पूरी तरीके नाल अधीन कर दिता है। वो परमेश्वर को परमेश्वर समझिया है, 100% 99% नहीं। अज बहुत सारे लोग आउंदे आ परमेश्वर दे विच, परमेश्वर आ मेरा फलाना काम करदी मैं तेनों फॉलो करूँगा, परमेश्वर आ ब्लैसिंग दे दी मैं तेनों फॉलो करूँगा। असीं सौदेबाजी करते हैं, पर रूथ ने सौदेबाजी नहीं की। वो खेतों के काम करने लई जाती है, सिट्टे चुगदी आ, उत्थे बहुत सारे यंग लड़के भी हैगे आ, और वो खुद बहुत ज़्यादा सोहनी हैगी आ, पर उन्हें अख चुके किसी वाल वेख्या भी नहीं, कुछ गलत सोचा नहीं, कुछ गलत किया नहीं। परमेश्वर के वचन वो नहीं जानती हैगी, बचपन तो अन्य जाति जो आई हैगी, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, फिर भी अपनी सस के अधीन रही है सही तरीके नाल। और बाइबल दसदी आ उहदी मैरिज हुई है। रूथ ने उम्मीद नहीं की होनी कि मेरी मैरिज होगी, पर उहदी मैरिज हुई है। परमेश्वर का वचन दसदा, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत वधिया नूं पति दिता है। रूथ नूं परमेश्वर ने आदर दिता, किसी बंदे ने नहीं, परमेश्वर ने आदर दिता, उहदा नाम उच्चा किया है। हालेलुया। अज परमेश्वर तुहानूं कहंदा पिया है, प्रभु की उपस्थिति दे विचों दौड़ो ना, ये भविष्यवाणी का संदेश है तुहाडे लई। परमेश्वर तुहाडा भी आदर करना चाहता है, परमेश्वर तुहानूं भी ऑनर देना चाहता है, परमेश्वर तुहानूं भी उच्चा करना चाहता है। लेकिन अगर असी प्रभु की हजूरी च दौड़ जावांगे, परमेश्वर आदर नहीं करेगा, परमेश्वर चाह के भी सानू ब्लैस नहीं कर पाएगा। बाइबल दे विच लिखिया है 6वीं आयत ध्यान देना पड़ेओ जी, परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन वस्तु दी। इसका मतलब उत्थे कुछ लोग रह रहे सी, वो छड्ड के नहीं गए परमेश्वर के घर, उत्थे ही रहे हो,
ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ, ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਥ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਚਾਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਭੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੱਸੂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੈਡੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੈਡੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। 90 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਰਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕਾਫੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਕਾਫੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ 70-80 ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾਏ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਵਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀ ਰੈਡੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ।
परमेश्वर रेडी है तुहानू छूण दे लई, तुहानू ब्लैस करन दे लई। अगर तुसीं रेडी हो तो मैं तुहाडे लई प्रार्थना करन दे लई जा रहा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जी। अगर तुहाडी कोई प्रार्थना विनती जल्दी दे नाल टाइप करो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट फिनिश करन दे लई जा रहे हैं। जल्दी दे नाल अगर तुहाडी कोई प्रार्थना विनती हैगी है टाइप करो। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. अपनी प्रार्थना मित्र टाइप करो जल्दी दे नाल अगर तुहाडी कोई प्रार्थना विनती हैगी है। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Please pray for my husband. He's in hospital. Okay. Thank you, Jesus. Okay, sister. थोड़ी प्रार्थना कर देंगे जी। जल्दी दिन अपनी प्रार्थना टाइप करो। Spiritual life, very good. Thank you, Jesus. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਥੇ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਭ ਜਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਨਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇਸੇ ਵਕਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਕਨੈਸ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਅਰਥ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਨਤੀ ਟਾइप करता है उन्होंने ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। अभी इस वक्त जिन लोगों ने टाइप किया है अपनी प्रार्थना विनती को कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका आत्मा उन्हें कंट्रोल करे, उन्हें चलाए, उनकी अगुवाई करे, उन्हें लीड करे मेरे परमेश्वर इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी प्रार्थना विनती को टाइप करें, जल्दी हम फिनिश करने जा रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को, जल्दी जल्दी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभी हम सब प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास डेस्टिनी भी है, सामने एक रास्ता भी है, सोर्स भी है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पा रहे। ये एक दुष्ट आत्मा है और हम प्रार्थना करेंगे। सब जन सहमत होंगे। हिंदी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पंजाबी नहीं समझते, हिंदी समझते हैं, और जो पंजाबी वाले हैं वो सारे हिंदी समझते, मुझे पता है।
तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सही टाइम पे सही डिसीजन, ये सही फैसला ले पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये जो बंदा जिसका नाम एलीमेलेक है, एक ऐसा टाइम आया जब ये बोने का टाइम था, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने का टाइम था, लेकिन इसने गलत डिसीजन लिया, अपनी फैमिली को साथ लेकर ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे परमेश्वर ने मना किया था, और बड़ा लॉस इसने दिखाया, डेथ कर्स इस फैमिली में आए। और आज हम प्रार्थना करके परमेश्वर सही टाइम पे हम सही डिसीजन ले पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है, इस वक्त जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं और जितने लोग मुझे देखेंगे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर जी, और सही टाइम पे ये सही डिसीजन लेने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्लेस करे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। Please accept Jesus Christ and God baptism. Wow, very good. Thank you Lord Jesus. ठीक है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, और कुछ प्रार्थना विनतियाँ हमारे पास हैं अभी, तो मैं जब भी उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, विश्वास करके परमेश्वर आपको अभी छुएगा, अभी आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को छुए मेरे अब्बा जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, तैयार हो जाएं महसूस करने के लिए और रिसीव करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और आज के समय के लिए, आपके वचन की सामर्थ के लिए मेरे परमेश्वर, आपकी आवाज़ के लिए मेरे परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर जी। अब भी इसी वक्त हर एक सिकनेस और वीकनेस जो उनके शरीरों में, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, अब भी इसी वक्त उन्हें लीव करें। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, अपनी सिकनेस और वीकनेस जो आपके शरीर में आप देख पा रहे हैं, उसे कमांड करना शुरू करें अभी इसी वक्त, वो खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। अब भी बोलना शुरू करें, वो खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपनी सिकनेस और वीकनेस को बोलना शुरू करें, अपने हालातों को बोलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। अब भी बोलना शुरू करें ऊंची आवाज़ में, बिना शर्माए कि आपके पास में कौन बैठा है, बिना शर्माए बोलना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोलना शुरू करें अभी ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर अपने लोगों को छुएं और ब्लेस करें मेरे परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बोलना शुरू करें ऊंची आवाज़ में। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिता यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को छुए और ब्लेस करें। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर जी। अभी इसी वक्त मैं इनके शरीर को बोलता कि वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ब्लड इन्फेक्शन खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्टमक में हर तरह की प्रॉब्लम जो है यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। यूट्रस का हर एक इन्फेक्शन, हर एक प्रॉब्लम खत्म होने पाए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने लोगों को छुए ब्लेस करे। हड्डियों के रोग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वेन्स में जो समस्या है वो खत्म हो यीशु मसीह के नाम के। जॉइंट पेन्स खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई साइट नॉर्मल हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। डिलीवरी CS से कन्वर्ट हो और नॉर्मल होने पाई यीशु मसीह के नाम से। डिलीवरी, बेबी डिलीवरी नॉर्मल होने पाई यीशु मसीह के नाम से। नॉर्मल हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपने लोगों को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इनके बिजनेस को ब्लेस करें मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके बिजनेस को छुएं और ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अच्छी जॉब का प्रबंध करें मेरे पिता परमेश्वर। जैसे 10 साल आप अपने लोगों को खिलाते रहे उस अकाल में, फैमिन में 10 साल अपने लोगों को खिलाया मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उसी तरीके से इनके लिए भी प्रबंध करें मेरे यीशु मसीह ने। छू ले इनके आत्मिक जीवन को छुए मेरे परमेश्वर और ब्लेस करें। अपनी बड़ी महिमा, बड़ी ग्लोरी को प्रकट करें। जैसे मेरे परमेश्वर आपने रूथ को ऑनर दिया मेरे प्रभु यीशु मसीह, इनका आपके वचन में खड़े रहना, आपकी उपस्थिति में बने रहना मेरे पिता परमेश्वर, आपके द्वारा इनके जीवन में ऑनर का कारण हो मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से। जैसे रूथ ने चूज किया, उसने फैसला लिया कि मैं उस देश में जाऊंगी जिस परमेश्वर को मैं जानती भी नहीं, मैं उसे फॉलो करूंगी, मैं परमेश्वर यहोवा को फॉलो करूंगी। और बाइबल में लिखा आपने उससे आदर दिया, उसका नाम ऊंचा किया, और आज उसका नाम बाइबल में है और पूरी किताब उसके नाम पर है यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर आदर दें अपने लोगों को जो खड़े आपकी उपस्थिति में,
समस्याओं के बावजूद मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। और ये भविष्यवाणी का संदेश है, बहुत से लोग भागने की योजना बना रहे परमेश्वर की उपस्थिति से, लेकिन बहुत से नए लोग, गैर मसीह लोग, आप देखोगे आफ्टर लॉकडाउन चर्चेस में बड़ी गिनती में नॉन क्रिश्चियन लोग चर्चेस में आएंगे और परमेश्वर खींच के लेके आएगा। और ये सीजन वो सीजन है जब लोग चंगाई को सिर्फ पाने के लिए नहीं आएंगे चर्च, सिर्फ छुटकारे के लिए, ब्लेसिंग के लिए चर्च नहीं आएंगे, वो आएंगे परमेश्वर को जानने के लिए। आफ्टर लॉकडाउन ये परमेश्वर ने बड़ा सीजन शिफ्ट किया है, बड़ी चीज़ें चेंज की हैं और लोगों की मेंटेलिटी, उनकी सोच बदलेगी आफ्टर लॉकडाउन। और वो आएंगे चर्च में परमेश्वर को जानने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, प्रचार सुनने के लिए नहीं, टीचिंग सुनने के लिए आएंगे। और आपको रेडी करना अपने आप को लोगों को टीच करने के लिए, प्रीच करने के लिए नहीं। हाँ, प्रीचिंग भी करनी है, लेकिन लोगों के अंदर ये भूख और प्यास पैदा होगी कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। कौन है परमेश्वर, हमें जानना है। वो प्रीचिंग से नहीं होगा, वो टीचिंग से होगा। क्योंकि यिर्मयाह किताब में लिखा कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक बंदा दूसरे को नहीं बोलेगा कि यार तू परमेश्वर को जानता है, वो बोलेगा कि वो पहले से ही परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला होगा। और इस लॉकडाउन के बाद ऐसा सीजन, ऐसा समय आने वाला है कि परमेश्वर अपने लोगों के अंदर भूख और प्यास को पैदा करेगा कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानने के लिए उसके पास आएँ। और ये टीचिंग का टाइम होगा, प्रीचिंग का नहीं। प्रीचिंग का टाइम फिनिश, ये टीचिंग का टाइम होगा। और अपने आप को तैयार करें, रेडी हो जाएं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ टीचिंग का टाइम, इसका मतलब आप पर्सनली अपने जीवन में परमेश्वर को वैसे जान पाएंगे जैसे एक मैन ऑफ गॉड परमेश्वर को सुनता है, परमेश्वर के वचनों में जो डीप रेवलेशन को जानता है, वैसे आप भी जान पाएंगे। और परमेश्वर मसीह यीशु में बड़ी ब्लेसिंग आप लेने वाले होंगे, बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होने वाले होंगे। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बार बार परमेश्वर बोल रहा है कि आप उसकी उपस्थिति को छोड़कर अपने रास्तों का चुनाव अपने हिसाब से ना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। बोल्डली बोले, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, बोल्डली उन्हें बोले कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दौड़ना नहीं है। वेट करो कुछ दिन और देखो परमेश्वर क्या करता है। अपने रास्तों का चुनाव ना करें अपने हिसाब से, अपने रास्तों को चूज ना करें जो आपके आजू बाजू जो वातावरण है। बाइबल में लिखा, जो इजरायली लोग मिस्र से निकले थे वो बार बार अपने वातावरण के द्वारा प्रभावित होते थे। आसपास जो उनके वातावरण था उसे देखते थे और बोलते थे कि नहीं, पहला वाला जो था वो अच्छा था, मिस्र में जो था वो अच्छा था। अपने ऊपर प्रभुता ना करने दे, अपने हालातों को, अपने वातावरण को। थैंक यू जीसस लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसे फॉलो करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। जिनको यहाँ पे पेन है शोल्डर में, धन्यवाद देना शुरू करें। इस जगह पे देखें, इस जगह पे जिनको समस्याएं शोल्डर में, धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर आपकी चंगाई की सामर्थ के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, भी सिर्फ धन्यवाद दे कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ चंगाई की सामर्थ के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। जिनके यहाँ पे समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से एज ए मैन ऑफ गॉड मैं बोलता हूँ, हर एक वो पर्सन जो प्लानिंग में है मैरिज के रिगार्डिंग, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हेवनली लाइफ पार्टनर का प्रबंध करे आपके लिए, यीशु मसीह के नाम से इन्हीं दिनों में। और आपका फैसला सही हो, कोई फैसला आप जल्दबाजी में लेने वाले ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। एलीमेलेक ने जल्दबाजी में फैसला लिया और बड़ा नुकसान उसने अपने जीवन में देखा और अपनी फैमिली के लिए बड़े घाटे का कारण वो बना। और रूथ ने कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया, बहुत सोचकर, बहुत समझकर, बहुत विचार कर उसने फैसला लिया। और बाइबल में लिखा बड़ी ब्लेसिंग का रीज़न वो ठहरी अपने खुद के लिए। हालेलुया। और हमारे लिए भी, हमें इंस्पायर करने के लिए वो रीज़न है रूथ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और सबसे बड़ी और ज़बरदस्त बात, यीशु मसीह जिस जनरेशन से आए वो जनरेशन रूथ ही थी। हालेलुया। यीशु मसीह उसी जनरेशन से आए हैं जिसमें रूथ है। हालेलुया। सोचो, एक अन्य जाति औरत, एक ऐसी जाति जिसके साथ परमेश्वर बोल रहा है कि आपको मिलना भी नहीं है, कोई संबंध नहीं रखना आपको। और वो औरत फैसला लेती कि मुझे परमेश्वर को फॉलो करना है। और सोचो, वो यीशु मसीह की जनरेशन में, जब मत्ती पहला अध्याय आप पढ़ते हो, वहाँ पे रूथ का नाम आप पढ़ते हो कि यीशु मसीह की वंशावली में रूथ का नाम है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आदर देना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन क्या आप रेडी हैं परमेश्वर के लिए बड़े फैसले को लेने के लिए? क्या आप रेडी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर में बना रहूँगा, इस फैसले के साथ क्या आप रेडी हैं खड़े रहने के लिए? अगर आप रेडी हैं
तो परमेश्वर भी रेडी है आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने जन रेडी है कि हाँ चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, मुझे बने रहना है परमेश्वर में? कितने जन ऐसे बोलते हैं? और कितने जन रेडी हैं कि हाँ मुझे ऐसे ही चलना है परमेश्वर में? थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर का। देखिए अभी मैं पंजाबी में प्रीचिंग कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा जो हिंदी समझते हैं, पंजाबी नहीं समझते। फॉर्मेट परमेश्वर ने चेंज किया। परमेश्वर ऐसे अपने लोगों के साथ बातें करता है। कितने जन रेडी है कि हाँ परमेश्वर चाहे हालात जैसे मर्जी हो, लेकिन मुझे आप में बने रहना है? सोचो कि ऐसी औरत एक ऐसी जाति से आती है जिसे रद्द किया गया, रिजेक्ट किया गया परमेश्वर के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। परमेश्वर रिजेक्ट करता है उन्हें। और सोचो यीशु मसीह उसी वंशावली में आते हैं, परमेश्वर ऐसे आदर देता है रूथ को। सिर्फ मैरिज ही नहीं हुई उसकी, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली में है। अभी जैसे पढ़ते हैं मत्ती उसका पहला अध्याय। थैंक यू जीसस लॉर्ड। जब मत्ती आप पढ़ते हो पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत, वहां पे लिखा रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो मत्ती पहला अध्याय, सिर्फ 5 लेडीज के नाम वहां पर आए हैं, और जिनमें रूथ एक है। परमेश्वर जब आपको ऊंचा करता है, परमेश्वर जब आपको ऑनर देता है, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, लेकिन क्या आप रेडी हैं इस माहौल में जब सब लोग ठंडे पड़ रहे हैं? बहुत से मसीह लोग ठंडे पड़ रहे हैं। क्या आप रेडी हैं कि चाहे माहौल जैसा और लोग जैसे मर्जी चले, लोग मैं जैसे मर्जी सोचे, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है, परमेश्वर के वचन को मुझे सुनना है, पवित्र आत्मा को मुझे सुन के चलना है, अपने हिसाब से नहीं। अगर आप रेडी हैं तो परमेश्वर भी रेडी आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। देखिए एलीमेलेक एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पे परमेश्वर मना करता है, और रूथ एक ऐसी जगह पे आती है जहां पे प्रभु की हजूरी है, परमेश्वर के घर में। और बाइबल में लिखा परमेश्वर से आदर देता है। परमेश्वर आपको भी आदर देना चाहता है, परमेश्वर आपको भी ऑनर करना चाहता है, परमेश्वर आपके नाम को भी ऊंचा करना चाहता है, अगर आप रेडी हैं, अगर आप रेडी हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे एक अच्छी जॉब से। विकास कुमार अन्य भाषा बोलना शुरू करें, अन्य भाषा बोल सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सच बोल रहा हूँ, परमेश्वर कुछ बड़ा करने के लिए रेडी है, लेकिन क्या आप बड़ा लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है? थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। विकास कुमार, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। ये वो सीजन है जो आप बोएंगे इस माहौल में, इस समस्या के टाइम पे, जो आप अपनी प्रार्थना को, हर एक एफर्ट को बोएंगे, आप बिना रिजल्ट के नहीं रहोगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद देना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद है सब जन, धन्यवाद देना शुरू करो, बोलना शुरू करो कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ। माहौल चाहे जैसा मर्जी हो, हालात चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन मैं आपकी हजूरी में बना रहूँगा, मैं ठहरा रहूँगा, मैं दौड़ूंगा नहीं मेरे परमेश्वर। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके वचन से मैं फिरूंगा नहीं मेरे परमेश्वर। अपने हिसाब से मैं अपने रास्तों का चुनाव नहीं करूंगा मेरे परमेश्वर। इस रीति से बोलना शुरू करें। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम सब जन इकट्ठे हैं लाइव में, आप जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, हम जब लाइव में इकट्ठे सब जन, हम आत्मा में सहमत हैं। शरीर में हम दूर हैं, लेकिन आत्मा में हम सहमत हैं, आत्मा में हम सहमत हैं। और जब हम प्रभु की हजूरी में सब जन इकट्ठे हैं एज ए चर्च, जैसे चर्च में हम इकट्ठे होते हैं, वैसे हम अपने आप को महसूस करके, विश्वास करके बोल रहे हैं, तो वैसा ही परमेश्वर करेगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोलना शुरू करें बिना शर्माए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपका काम, जितने लोगों ने मुझे सुना, आपका ये काम है कि आपको लोगों को जो वचन आपने सुना है, ये आपको लोगों को बताना है, अवेयर करना है, उनको टीच करना है, उनको सिखाना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैंने कल भी बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूँ। आपके हिसाब से आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर फेल हो चुके हो सकता होंगे। आपको लगता होगा मेरे जीवन में ये नुकसान हुआ, मेरे जीवन में मैंने इतनी प्रार्थना की, इतनी ऑफरिंग को बोया, लेकिन मेरे जीवन में रिजल्ट नहीं आया। और आप सोच रहे होंगे कि नहीं, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूँ, इस जगह पे आप रॉन्ग हो सकते हो। बाइबल में लिखा, एलिया भी कहता है कि परमेश्वर मैं सिर्फ अकेला ही बचाऊं, तेरे भविष्यवक्ताओं को मार दिया गया, सबको कत्ल कर दिया गया, मैं अकेला बचाऊं। परमेश्वर ने कहा 8,000 भविष्यवक्ताओं को मैंने बचा के रखा है अपने लिए।
मैं बताना चाहता हूँ आपके हिसाब से लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर के अनुसार कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अभी भी कुछ बेस्ट है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर ने कुछ बेस्ट आपके लिए रखा हुआ। परमेश्वर ने अपना बेस्ट रखा है, हमारा नहीं, अपना बेस्ट जो परमेश्वर के हिसाब से बेस्ट है परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। अपने स्थान को छोड़े ना, पकड़े रहे मसीह यीशु को। जैसे पौलुस कहता है, एक कलीसिया को खत लिखते हो कि तन मन से परमेश्वर से लिपटे रहो, उसे पकड़े रहो, थामे रहो मजबूती से, पकड़े रहे परमेश्वर को। ये दिन जल्दी खत्म होने वाले हैं, जल्दी ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, जल्दी ये सब कुछ खत्म होने वाला है और परमेश्वर की बड़ी महिमा को आप देखने वाले होंगे। और जो पीछे हैं, बहुत से लोगों को देखें जो पीछे वो आगे कर दिए जाएंगे, और बहुत से लोग जो आगे वो पीछे इसलिए किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना नहीं। परमेश्वर का आत्मा जब बोला, उन्होंने उसकी अगुवाई को अपने जीवन में लिया नहीं और वो पीछे कर दिए जाएंगे। ये कोई धमकी में परमेश्वर के वचन से नहीं दे रहा, ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, ये नई शुरुआत है। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको छुए। अभी अगर आप प्रार्थना के लिए मुझे कॉल करना चाहते हैं, अभी कर सकते हो हमारे प्रेयर नंबर के ऊपर 9780016578। इस ब्रॉडकास्ट के बाद आप कॉल कर सकते हो अभी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुछ बड़ा आपकी वेट कर रहा है परमेश्वर की ओर से, कुछ बड़ा सरप्राइजिंग शॉकिंग आपकी वेट कर रहा है, बड़ी ब्लेसिंग आपकी वेट कर रही है। अपने आप को तैयार करें। एक बात याद रखें, जब आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर ने उन लोगों को कभी ब्लेस नहीं किया जो तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने उन लोगों को ब्लेस किया जो रेडी थे, जो तैयार थे। आज देखें, क्या मैं तैयार हूँ? अपने आप से पूछे, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं रेडी हूँ? अगर आप रेडी हो तो परमेश्वर भी रेडी है। अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर। ऊंची आवाज बोले, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ मेरे परमेश्वर। बड़े कामों के लिए मेरा चुनाव हुआ है। बोलना शुरू करें, बड़े कामों के लिए मैं चुना गया हूँ। समस्याएं मेरे लिए नहीं है, प्रॉब्लम्स मेरे लिए नहीं है, ये जो सीजन है ये मेरे लिए नहीं है। कोई बीमारी मेरे लिए बनाई नहीं गई, कोई बंधन शैतान की ओर से मेरे लिए तैयार नहीं किया गया, कोई ट्रैप मेरे लिए बनाया नहीं गया, कोई शैतान की सामर्थ मुझे फॉलो नहीं कर सकती। परमेश्वर की दया, भजन संहिता जैसे 23 में लिखा, परमेश्वर की दया और भलाई जीवन भर मेरा पीछा करेंगी। सिर्फ परमेश्वर की दया और उसकी भलाई मेरा पीछा करने के लिए, कोई शैतान की सामर्थ, कोई श्राप मेरा पीछा नहीं कर सकता। बोलना शुरू करें इसी वक्त प्रभु की हजूरी में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करे, ब्लेस करे मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। चंगाई की सामर्थ को देखने वाले हो, बड़े कामों को देखने वाले हो मेरे परमेश्वर। और जब ये अपनी ब्लेसिंग के साथ खड़े हो, लोग देखे और आपकी महिमा करने वाले हो मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आने वाले दिनों में हमारे ब्रॉडकास्ट जो है लाइव, अब आप देख पाएंगे। पिछले दिनों में हमने मिस किए कुछ संडे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, हम लाइव नहीं आए। लेकिन अभी मैं लाइव आऊँगा कंटिन्यूसली, सिर्फ संडे ही नहीं, बाकी दिनों में भी लाइव आऊँगा। और परमेश्वर के आप वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। और वो वचन ऐसा नहीं होगा कि हाँ सिर्फ वचन प्रीच कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, कुछ भी रूम में बैठ के अपने सेटअप में बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर की आवाज़ आप बोलोगे कि हाँ ये परमेश्वर की आवाज़ है और ये मेरे लिए, आप ऐसे बोलने वाले होंगे। परमेश्वर की आवाज़ के बिना मैं लाइव नहीं आऊँगा, और मैं लाइव आऊँगा संडे के बिना भी। और तैयार है, और अपनी फैमिली को तैयार करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट प्रार्थना आप अटेंड कर पा रहे हो, सिर्फ अकेले अटेंड कर रहे हो, अपनी फैमिली को भी साथ में बिठाओ। इस लॉकडाउन के माहौल में आत्मिक खुराक जो आपको चाहिए, आपकी फैमिली को भी चाहिए। और बाइबल में लिखा, अपने घराने की भी हमें चिंता करनी है। हम आत्मिक तौर पे उन्नति चाहते हैं। हमारे घर वालों को, जो हमारे घर वाले हैं, हमारी फैमिली, उनको भी आत्मिक उन्नति चाहिए, उन्हें भी आत्मिक खुराक चाहिए। और जब आप ब्रॉडकास्ट देखते हो, अपनी फैमिली को बिठाओ साथ में, उन्हें भी बोलो कि हाँ मैं परमेश्वर का वचन सुनना है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम पंजाबी में नहीं करेंगे, हम हिंदी में ही प्रीचिंग करेंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं कि हाँ हम रेडी हैं हिंदी में? थैंक यू जीसस लॉर्ड। हिंदी में ही कोशिश मेरी रहेगी कि हम हिंदी में ही प्रीच करेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन को बांधा ना जा सके सिर्फ कि हाँ ये पंजाब में ही है। नो, हम पंजाब से बाहर जा सकें, पंजाब के बाहर के जो लोग हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, वो सुन पाएँ, समझ पाएँ, और वो ले पाएँ परमेश्वर की आवाज़ जो है, उसकी ब्लेसिंग को। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
वेरी गुड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। जो भी नोटिफिकेशन होगी वो अपलोड की जाएगी। थैंक यू जीसस। और हमारे मैसेजेस सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जगसीर हंस, हमारा यूट्यूब चैनल जगसीर हंस, द होप इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज। जगसीर हंस जब आप भरोगे यूट्यूब के ऊपर, हमारा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और परमेश्वर के बड़े काम आपके जीवन में हो, उसके लिए आप रेडी हो पाओ। इसके लिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के जो आवाज़ मौजूदा समय में हमारे लेके आए, आने वाले समय में परमेश्वर क्या गाइड कर रहा है, आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो आप। थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जितने लोगों ने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा, परमेश्वर आपको छुए। जितने लोगों ने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, जितने लोगों ने आज अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, परमेश्वर आपको बदला दे अपनी ब्लेसिंग से, चंगाई से, छुटकारे से, ब्रेक थ्रू से। और परमेश्वर आपको ऊंचा करे। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई स्पीक ब्लेसिंग, आई स्पीक ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तब यीशु मसीह के नाम से, उसका जन्म होने करके मैं आशीष को आपके जीवन में बोलता हूँ, मैं आशीषों को आपके जीवन में बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह।